Okay, morning to all. I think so I'm audible to everyone. Uh, Today we are having the class of the as a kind of the orientation, or you can consider about the a discussion regarding the Indian polity or constitution. Okay, I think so. Few students are also going to appear for this year, so that's why I have been told to take a kind of the introductory class for you of the Indian polity. And in the same, we will be discussing about something about the Indian polity. That what is the criteria of this subject? What is this subject is about? Why this subject is being introduced by the UPSC into the examination? What is the weightage of this subject? All this topic will be discussing in detail today regarding the Indian polity or the constitution. Okay, so we are going to start with this. Please, whatever things that are being important for you that I'm going to discuss today, whatever you find important, so you can take it down, you can write it down in a proper manner. Okay, so that you can understand about each and everything from the future circumstance. However, whenever we will be having the lecture of the Indian polity, probably surely we will discuss about all these things in detail again. ओके जब भी हमारा लेक्चर होगा इंडियन पॉलिटी का प्रॉपर अगर मैं पढ़ाऊंगा तो लेक्चर शुरू होगा तो तब इंडियन पॉलिटी में मैं आपको ये पूरा डिटेल में बताऊंगा कि व्हाट इज बीइंग द प्रोसीजर सेम थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इनटू द today's lecture of the Indian polity. Okay, so please everyone be attentive. Let's discuss about this. So when we understand about this subject, firstly we need to understand what is Indian polity or constitution. Okay, so first thing that, or the first question that comes in front of us, that what is the Indian polity or constitution, or whether these are a separate kind of subject, or these are a kind of individual subject, or a kind of different name is being given to a single subject. कि इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं. पहले तो रीजन है कि हम इसे पढ़ते क्यों हैं. कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में रीजन क्या है कि इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस क्यों किया गया. ओके, सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस. देखिए, when you will become a civil servant or when you will become a public officer, whatever work that you are going to do, you have to do in accordance with the Constitution of India. Okay, जो भी आप काम करेंगे आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग वो काम करना है. दैट्स व्हाई द सब्जेक्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन इज इंट्रोड्यूस. एवरीथिंग कैन नॉट बी टॉट टू यू बाय द ट्रेनिंग अकेडमी. हर चीज आपको ट्रेनिंग अकेडमी भी पढ़ा नहीं सकती. ओके, तो इसलिए यूपीएससी क्या करता है कि आपका जो सिलेबस करिकुलम है उसी के अंदर सब्जेक्ट को, काफी सारे सब्जेक्ट्स को, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करता है, जिसमें से एक सब्जेक्ट है दैट इज द इंडियन पॉलिटी और द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि आपके अंदर इंडियन पॉलिटी की नॉलेज, कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज एक सही लेवल पर आ जाए. ओके, so whenever you are going to do any kind of work, you have to do in accordance with the law or the constitution. So that's why this subject is being introduced to you. This is being the first and the primary reason. Then what are the other reasons? That law and constitution are both separate fields. Constitution एक अलग चीज है और कानून जो लॉ है वो एक अलग चीज है. दोनों में काफी बड़ा डिफरेंस होता है. तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आप पॉइंट्स में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं एवरीवन. ओके, सो जब हम लॉ की बात कर रहे हैं, लॉ ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, जिसको हम एक्ट भी कह लेते हैं. व्हेन इट विल बिकम एक्ट, ये पूरा मैं आपको एक बार प्रोसीजर समझाता हूं. सबसे पहले आएगा ड्राफ्ट. ओके, जिन्होंने मेरे से ऑलरेडी लेक्चर ले रखा है इंडियन पॉलिटी का, उन्हें तो ये सब चीजें पता ही होंगी, बट वो दोबारा रिवाइज कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है. ओके, फर्स्टली इट विल बी कॉल्ड एज द ड्राफ्ट. ओके, व्हेन दैट ड्राफ्ट विल बी प्रपोज्ड, इट विल बी कॉल्ड एज बिल. ध्यान से सुनिए इस चीज को. आई एम टीचिंग यू द वेरी बेसिक्स एंड द जीरो ऑफ द इंडियन पॉलिटी. ओके, सबसे पहले आएगा एक ड्राफ्ट. ओके, लाइक ड्राफ्ट इज बीइंग इंट्रोड्यूस, कुछ पेजेस का उसके अंदर डिटेल दी है. फॉर एग्जांपल जीएसटी का ड्राफ्ट बना. ओके, और उसके बाद उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, तब उसे क्या बना दिया जाएगा, जीएसटी बिल. ठीक है कि नहीं. उस जीएसटी बिल की प्रिंटेड कॉपीज सभी सांसदों को या फिर सभी
मेंबर पार्लियामेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी, ठीक है कि नहीं। द प्रिंटेड कॉपीज ऑफ दिस जीएसटी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द मेंबर पार्लियामेंट, जितने भी हैं 552 250 जो भी आप हम आगे पढ़ेंगे इन सब चीजों को, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी, ऑल द प्रिंटेड कॉपीज ऑफ द जीएसटी बिल। अब इसके ऊपर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा पार्लियामेंट में, ओके। डिबेट्स एंड डिस्कशंस विल बी देयर ऑन टू दिस काइंड ऑफ टॉपिक। तो व्हेन वी अंडरस्टैंड अबाउट दिस डिबेट डिस्कशन, लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन होगा, और डिबेट और डिस्कशन के बाद, ओके, ये कहां पर जाएगा ये बिल? दिस बिल विल बी फॉरवर्डेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। ये बिल किसको दे दिया जाएगा? दैट इज टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट। When this president will approve or give his assent to the bill, this bill will become a act. Everyone is clear with this or not? So I think so everyone is clear कि सबसे पहले बना draft. What is draft? Draft is just like a proposed kind of topic. What is a bill? Bill is a proposed legislation. Okay, what is bill? Bill is a proposed legislation, and when this bill will be given assent by the president of India, this bill will become a act or law. Okay, अब इंडिया में हजारों कानून है आज तक, जब अगर हम डिस्कस करें तो, लाइक इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक लॉज, ओके, अगर आप सिर्फ बेसिक लॉज के बारे में बात करें इंडिया में, तो वो आप दो तीन मान लीजिए, लाइक द आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है। तो ये हैं हमारे सारे नॉर्मल कानून, और इंडिया में हजारों लाखों कानून और हैं, लाइक द, अब इसके बाद बहुत सारे हैं, एडवोकेट्स एक्ट हो गया, ओके, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, लॉट ऑफ एक्ट्स आर देयर, 1000, बस एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, कंपनीज एक्ट हो गया, नंबर ऑफ एक्ट्स आर देयर। तो ये सारे हैं एक्ट्स, या फिर आप इनको कानून बोल लीजिए। कोड का मतलब भी क्या होता है? कानून, ओके। तो व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस, so laws or acts are being made into this when we understand about this. So these all laws or acts, जैसे मैं आईपीसी की बात करूं, इंडियन पिनल कोड वर्ल्ड का सबसे बड़ा पिनल कोड है, ओके। पिनल मतलब जो किसी को पिनलाइज करे, जो पनिशमेंट दे, ओके। तो जो हम इसको समझते हैं, तो आईपीसी बताएगा कि ये किस तरीके का जुर्म किया है इस इंसान ने, क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ऑल दिस थिंग विल बी देयर। अब इन कानून को नंबर देने होंगे, जिस नंबर को दिया जाएगा सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 302, 303, 304, 376, जो जिनको आप कहते हैं धाराएं इनटू द हिंदी, तो उनको बोला जाएगा सेक्शंस। जितने भी हमारे पास कानून है सभी के क्या है? सेक्शंस, ओके। सो आई थिंक सो एवरीवन इज क्लियर दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ और एक्ट। Do you understand with this or not? So what I'm trying to teach you, तो ये तो हो गया लॉ या फिर एक्ट, जिसको हम कानून कहते हैं, और दूसरा हो गया दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सिंगल, ओके। फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू द कन्याकुमारी देयर विल बी ए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल द पीपल। सभी के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के टचस्टोन पर ये कानून बनाए जाएंगे, ओके। जब भी कोई कानून बनाया जाएगा, ध्यान से सुनिए, उसे कॉन्स्टिट्यूशन के मद्देनजर रखते हुए बनाया जाएगा, कि कोई भी कानून का ऐसा प्रावधान नहीं होना चाहिए कि जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी आर्टिकल वॉयलेट हो रहा हो, ओके। यहां पे सेक्शंस है लॉज और एक्ट्स के, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है? नंबरिंग जो है वो आर्टिकल्स है। Got with this or not? So when we understand about this, there are two kind of thing. One is the law or act, and the other is the constitution. What is the we can consider there are three minor differences into this, जो आपको सिविल सर्विसेज में रिक्वायर्ड है। हाँ, अगर यही क्लास उनकी होती, लॉ के स्टूडेंट्स की होती, तो मैं उन्हें अलग तरीके से पढ़ाता। बट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द यूपीएससी सिविल सर्विसेज, देयर आर 2 to 3 things into there. There are minor 3 differences. What is the first? That law or acts are having the sections, whereas the constitution is having the articles. There are thousands and lakhs of laws. Constitution is unitary, that is single constitution, okay. Laws are made, but laws are made on the touchstones of the constitution of India. Please इस टर्म को लिख लीजिएगा,
लॉज आर मेड ऑन द टचस्टोन्स, टचस्टोन मतलब कसोटियां, ओके, कसोटियों पर खरा उतरता है जब कोई कानून, तब उसे बनाया जाता है। इट मींस ऑल लॉज आर मेड ऑन द टचस्टोन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, तो ये मैंने आपको एक बेसिक डिफरेंस बताया दैट व्हाट इज द इंडियन पॉलिटी और द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कि इंडियन पॉलिटी क्या है, कि ये तो मैंने आपको बताया कि क्यों द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस दैट इज इनटू द फ्रंट ऑफ अस, कि इंडियन पॉलिटी आया क्यों, बनाया क्यों गया है वो। ओके, एंड द सेकंड क्वेश्चन दैट कम्स इनटू फ्रंट ऑफ अस दैट व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी, कि हम इंडियन पॉलिटी के सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं। सो द टू रीजंस आर क्लियर टू अस, कि एक जो सिविल सर्वेंट है उसे कानून का, उसे कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान होना चाहिए, तो इसलिए इंडियन पॉलिटी इंक्लूड किया गया। ओके, एंड द सेकंड रीजन that why this has been incorporated and what is the difference between the law or the constitution, that we have already studied about this. Okay, so the two questions are clear to us कि हम किसी भी सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉट ओनली अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी, फॉर एग्जाम्पल इट मीन्स व्हेन यू कंसिडर अबाउट ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, जब भी आप इन चीजों को कंसिडर करेंगे तो इट मीन्स योर सब्जेक्ट, ओके, लिसन इट केयरफुली, योर सब्जेक्ट is having some relation with the duty. This is to be remembered by you. एक इंजीनियर है तो वो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ रहा है, वो इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि जब वो फील्ड में काम करेगा तो उसे इंजीनियरिंग की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, सो तभी आप ये सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आप इनको फील्ड में अप्लाई करेंगे तो ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको एक एक सब्जेक्ट को अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी कंसिडर अबाउट व्हाई यू आर स्टडिंग अबाउट द हिस्ट्री, आप कहेंगे सर हिस्ट्री तो हम कहीं भी अप्लाई नहीं करने वाले, नहीं है, ऐसा नहीं है, हिस्ट्री आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यू हैव टू अप्लाई द हिस्ट्री एट लॉट ऑफ प्लेसेस। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द हिस्ट्री विद द सब्जेक्ट एंड ड्यूटी? सपोज देयर आर लॉट ऑफ हिस्ट्रीज, लाइक द फर्स्ट इज द एंशियंट हिस्ट्री, ओके, एंशियंट, मेडिवल, modern, art and culture, world history, post independent India history। ओके, तो अब ये हिस्ट्री पढ़ने का लॉजिक क्या है, व्हाट इज द डेटरेंस ऑफ स्टडिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द हिस्ट्री, कि जब तक आप अपने एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में नहीं जानेंगे, ओके, लाइक आप किसी एरिया में आईएएस हैं, ओके, आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, और लीव द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सपोज आप आर्कियोलॉजिकल साइट जो है एएसआई, उसमें ही आप कोई आईएएस हैं, ओके, तो आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि आईएएस तो किसी भी डिपार्टमेंट का हो सकता है। दिस इज टू बी अंडरस्टूड बाय यू, कि जो आईएएस ऑफिसर होगा वो तो किसी भी डिपार्टमेंट का हो सकता है, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल हो, चाहे वो सीपीडब्ल्यूडी हो, दैट इज द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, चाहे वो पेंशन हो, फाइनल अथॉरिटी तो आईएएस ही होगा उस डिपार्टमेंट का। तो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या थी, चाहे वो मेडिवल में कंसीडर कर लीजिए, मॉडर्न में हमें पता होना चाहिए। देन आफ्टर आर्ट एंड कल्चर, आप बहुत सारी ऐसी रिलीजियस प्लेसेस होंगी जहां पे आपको डेप्यूट किया जाएगा एज आईएएस। जितने भी कल्चरल प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसको भी हेड आईएएस ऑफिसर्स ही करते हैं, तो इसलिए आपको आर्ट एंड कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री का ज्ञान इसलिए होना चाहिए कि अगर आप फॉरेन में चले गए, ओके, यू हैव बिकम अ डिप्लोमेट, तो आपको फ्रांस की, जर्मन की, जिस जिस कंट्री में आप डेप्यूट हो रहे हैं, तो उसके बारे में पूरी हिस्ट्री तो नहीं, दैट इज नॉट बीइंग प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट एक लेवल तक तो पता होना चाहिए ना कि उस कंट्री में कैसे चल रहा है, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ दैट कंट्री, उसका पास्ट कैसा रहा है, उसके रिलेशन कैसे रहे हैं इंडिया के साथ। ओके, दैट्स व्हाई यू आर स्टडीइंग अबाउट ऑल दिस काइंड ऑफ टॉपिक, कि ये एक रिलेशन है। ओके, हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ओके, दे आर बीइंग अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, कि आप महात्मा गांधी की फिलॉसफीज हैं। ओके, व्हेन यू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, तो इस सब्जेक्ट का आपकी ड्यूटी से डायरेक्ट रिलेशन है। ओके, लाइक यू स्टडी अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द जियोग्राफी। ओके, तो जियोग्राफी में लाइक यू स्टडी अबाउट अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, तो लाइक हम ह्यूमन सेटलमेंट्स को पढ़ते हैं। ओके, ह्यूमन सेटलमेंट्स के टॉपिक हो गए, या फिर क्लाइमेटोलॉजी हो गया। ओके, और यू कैन कंसिडर अबाउट द जियोमॉर्फोलॉजी। ओके, लॉट ऑफ टॉपिक्स आर देयर। फॉर एग्जांपल, क्लाइमेटोलॉजी में मॉनसून ही मान लीजिए। ओके, और यू कैन कंसिडर अबाउट द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जिन्होंने
ज्योग्राफी पढ़ लिया है उन बच्चों को तो अच्छे तरीके से पता ही होगा इन टॉपिक्स के बारे में। तो क्लाइमेटोलॉजी में बीइंग अ आईएएस ऑफिसर, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस विद योर जॉब? तो क्लाइमेटोलॉजी में आपको मॉनसून का पता होना चाहिए कि आपके एरिया में एवरेज रेनफॉल कितना है। आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, ओके, यू आर आईएएस, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एनुअल और एवरेज रेनफॉल इनटू योर एरिया। यू अंडरस्टैंड विद दिस नोट? तो बेस्ड अपॉन दैट, सपोज इस साल मॉनसून आपके एरिया में गड़बड़ा गया, इस साल अच्छा मॉनसून नहीं हुआ आपके एरिया में, तो व्हाट यू विल डू बेस्ड अपॉन टू दैट यू विल डिमांड फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके, फंड किसके साथ? आप स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करेगी। देयर इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसीजर ऑन टू दिस। ओके, तो आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, कोई नेचुरल कलामिटी आ गई तो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी स्टेट के लिए, आपकी डिस्ट्रिक्ट के लिए शायद से फिर और थोड़ा फंड एलोकेट करे, प्रधानमंत्री राहत कोष में से शायद से आपको थोड़ा पैसा दिया जाए। सो ऑल द थिंग्स आर बीइंग इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ओके, लाइक यू कंसिडर अबाउट द जियोमॉर्फोलॉजी। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बैकग्राउंड कैसा, हड़प्पन सिविलाइजेशन थी और उसके बाद यहाँ पे कितने एक्सकवेशन हुए हैं आज तक। ओके, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी दोनों है। ओके, हिस्टोरोग्राफी इसको एक तरीके का आप कह सकते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स। ओके, प्लानिंग का हिस्सा है ये ज्योग्राफी का, कि ह्यूमन सेटलमेंट अगर आप स्टडी करेंगे, लाइक इफ यू फाइंड अबाउट वेयर एवर देयर आर लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स, अगर किसी भी सिटी में, किसी भी स्टेट में जिस एरिया में ज्यादा डेवलपमेंट होगी तो उस एरिया में आपको एक और चीज मिलेगी, दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्लम्स नियर दैट एरिया। क्योंकि जो स्लम के लोग हैं जो बनाते हैं बिल्डिंग्स को, वो पास में ही सेटल हो जाते हैं। लाइक द धारावी into the Mumbai is one of the biggest slum into the Asia. ओके, तो स्लम्स के डेवलपमेंट, तो ह्यूमन सेटलमेंट कैसी होनी चाहिए, पर डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, न्यू दिल्ली में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, कितनी होनी चाहिए और इंप्रूवमेंट हमें कितनी चाहिए, ऑल दिस थिंग्स आर बीइंग इंक्लूडेड इनटू दिस। ओके, सो व्हेन वी अंडरस्टैंड अबाउट दिस दैट द रिलेशन, इट मींस एवरी सब्जेक्ट इज हैविंग सम काइंड ऑफ रिलेशन। देन अगर आप कंसिडर करेंगे तो जितनी भी प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी 3:1 के। तो व्हेन वी अंडरस्टैंड अबाउट दिस, अगर आप दो स्टेटमेंट्स के ऊपर श्योर शॉट है कि हाँ भाई ये तो होगा ही होगा, तो ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड जो दो और स्टेटमेंट आपको लग रही है कि जिसके ऊपर मुझे नहीं भरोसा, मैं आई एम नॉट हैविंग द क्लैरिटी, तो उसके ऊपर बैठ के आपको 2 मिनट सोचना होगा। एंड व्हेन यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस, तो इससे क्या फायदा होगा आपका, कि इससे आपको जो बाकी की चारों स्टेटमेंट्स है ना, जो टोटल 4 स्टेटमेंट है, उसमें भी क्लैरिटी डेवलप हो जाएगी। ये वाली जो सेकंड अप्रोच मैंने बताई है, ये जनरली काम आती है इनटू द क्वेश्चंस फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ द ज्योग्राफी। ठीक है कि नहीं? ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सेकंड अप्रोच काम आती है, और जो फर्स्ट अप्रोच है वो पॉलिटी और एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस के लिए। ओके, जो मैंने फर्स्ट अप्रोच बताई है, दैट इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री एज वेल एज द यू कैन ज्योग्राफी, बट ये पॉलिटी ऑल्सो, बट ये बाकी की आप और सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई करते हैं, इकोलॉजी में भी कई बार अप्लाई हो जाती है सेकंड अप्रोच। टोटल ये 15 अप्रोचेज हैं। ओके, दे आर टोटल 15 अप्रोचेज फॉर सॉल्विंग, you can say about a kind of smart thinking for solving the questions of the prelims। उसके लिए टोटल 15 अप्रोचेज हैं। अब अगर आप प्रॉपर तरीके से ये टोटल 15 अप्रोचेज सीख गए, ओके, तो फिर तो किसी भी लेवल की प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं आपकी। इन अप्रोचेज से ये नहीं है कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आप 100 के 100 अटेम्प्ट कर देंगे, आई एम नॉट सेइंग लाइक दिस, बट वन थिंग विल बी इंक्रीज्ड, दैट इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी। ओके, आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और जो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने का जो कारण होता है वो मिनिमम हो जाएगा। You understand this or not? So that is why I am telling you about the solving of the questions into the prelims. Okay, let's consider about the second. Okay, second part, that is the second stage that is being given to us, that is of the mains written. Okay, जब हम mains written की बात कर रहे हैं, तो what is the thing being said to us into the mains written? कि इसके अंदर हमें एक चीज समझनी होगी कि मेंस रिटन का जो क्वेश्चन होगा वो स्टैटिक प्लस डायनेमिज्म पे फोकस करेगा। ओके, स्टैटिसिज्म एज वेल एज द डायनेमिज्म। स्टैटिक क्या हो गया जो हमने पढ़ा है, डायनेमिज्म क्या हो गया जो करंट अफेयर है, कंटेम्प्रेरी, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। बट व्हेन वी अंडरस्टैंड अबाउट दिस स्टैटिक प्लस डायनेमिज्म, तो इसी को एक आप कह सकते हैं एग्लोमरेशन से, इसी के कंसीडरेशन से हमारा जो वो
मेंस रिटन का क्वेश्चन है वो हम टारगेटली उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो व्हेन वी अंडरस्टैंड अबाउट द स्टैटिक एज वेल एज डायनेमिक, फॉर एग्जांपल स्टैटिक में आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, ओके, एनी काइंड ऑफ टॉपिक, या फिर जुडिशरी का इंटरवेंशन एग्जीक्यूटिव में या फिर लेजिस्लेचर में, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, दे आर नॉर्मल काइंड ऑफ टॉपिक्स। तो उसके अंदर अगर उसका कोई करंट अफेयर आया हुआ है, ओके, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ करंट अफेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज इनटू द डायनेमिज्म, दैट इज इनटू द डायनेमिक पार्ट, दैट इज इनटू द करंट अफेयर और द कंटेम्परेरी पार्ट। ओके, तो स्टैटिक प्लस डायनेमिज्म का एक मिक्स होना चाहिए। हाँ, मान लीजिए सपोज क्वेश्चन ही बिल्कुल स्टैटिक है, वैसे ऐसे बहुत कम टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो बिल्कुल स्टैटिक हो, बट लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि एक स्टैटिक क्वेश्चन उसने आपसे पूछा, व्हाट इज यूपीएससी, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ यूपीएससी। अब ये बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई भी कंटेम्परेरी नहीं है, बट इतना आसान क्वेश्चन वो क्यों पूछेगा? दिस इज ऑल्सो द थिंग ना, वो डिफिकल्ट तो नहीं पूछेगा, बट एटलीस्ट वो डायनेमिज्म से भरा हुआ क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही आंसर राइटिंग में भी थोड़ा चेंज आ चुका है कि व्हेन वी यूज्ड टू डिस्कस अबाउट कि जुडिशरी के ऊपर बिल्कुल अभी थोड़े दिन पहले ही चेंज आया है ये जुडिशरी के क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि मैं ये चेंज इसलिए बता रहा हूं कि क्योंकि काफी सारे एक्स स्टूडेंट्स भी हैं, तो उन्हें पता चल जाना चाहिए इसके बारे में। जो जुडिशरी के जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर आप सजेशन और रिकमेंडेशन दे सकते हैं आप। ओके, जुडिशरी के क्वेश्चंस में सजेशंस और रिकमेंडेशंस आप दे सकते हैं, बट नॉट ऑन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ही चेंज कर दिया, आप उसके ऊपर अपना व्यू बता सकते हैं कि ऐसा मेरा सजेशन और रिकमेंडेशन है। दूसरा, जुडिशरी एंड रिलीजन के ऊपर आप बता सकते हैं काफी कुछ आजकल। ओके, इसके ऊपर अभी मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, अगले 2-3 महीने में, ओके, प्रेजेंटली सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अगले 3-4 महीने में, ओके, सितंबर को तो चाहे एक्सक्लूड कर दीजिए, अगले 3-4 महीने में जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और रिलीजन के ऊपर काफी बड़े जजमेंट आने वाले हैं। ओके, जिसमें से ऑलमोस्ट एक जजमेंट शायद से सुप्रीम कोर्ट सबरीमल्ला के ऊपर दे ही देगा। ओके, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। ओके, सो व्हेन वी कंसीडर अबाउट दिस, तो जुडिशरी एंड रिलीजन के ऊपर भी, और एक और याद रखिएगा इसके अंदर, एक और मैं लॉयर से बात कर ही रहा था, जुडिशरी, रिलीजन एंड फंडामेंटल राइट्स। ओके, स्पेशली आर्टिकल 25 to 28, बट ये सारा मेंस रिटन का पार्ट है, तो याद रखिएगा ये रीसेंट चेंज है इसके अंदर, ये 2 आप 3 कह सकते हैं। ओके, दैट इज अ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 25 to 28, दिस इज बीइंग ब्रॉट बाय द यूपीएससी। तो इसके अंदर ये अब काफी ज्यादा हमारा जो आंसर राइटिंग है ना, उसके अंदर भी बदलाव आ जाएगा। ओके, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे लास्ट ईयर बहुत सारे आंसर सबमिट किए हैं इंडियन पॉलिटी के, दे नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। मैं उन्हें सिखाऊंगा कि जो अब नया चेंज आया है तो उसे किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है। अगर आप ये चेंज, आप आगे जाके मेंस रिटन में अगर बैठेंगे, अगर आप ये चेंज इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो आपको कम से कम 1.5 से 2 मार्क्स का पर क्वेश्चन में फर्क पड़ जाएगा ऑफ द इंडियन पॉलिटी। ओके, तो इसको याद रखिएगा, दैट व्हाट काइंड ऑफ चेंज दैट हैज बीन ब्रॉट इनटू द पॉलिटी। And let's see about the third stage. Okay, please, you can write about the third stage also. The third stage is the interview or personality test. Okay, please write it down. The third stage is the interview or personality test. Okay, you can write into this stage that this is the unpredictable stage. Okay, there was some kind of glitch. Okay, पंचायती राज के क्वेश्चंस as well as of the municipality. पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? वैसे कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती होगी उसके अंदर एक चीज में, दैट इज अबाउट द आर्टिकल्स। पंचायती राज के आर्टिकल्स बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, आई एम टेलिंग यू इन एडवांस। ये सच में प्रॉब्लम आती है कि पंचायती राज के आर्टिकल्स ABCDEFGH बहुत आगे तक जाते हैं वो, तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं बनता तो उसे छोड़ दीजिएगा, दैट इज नॉट अ बिग काइंड ऑफ डील फॉर अस। बट उसके जो आर्टिकल्स के पॉइंट्स हैं, जैसे पंचायती राज में कुछ कमिटीज मैंने करवाई थी आपको, GVK राव कमेटी, ओके, बलवंत राय कमेटी, लॉट ऑफ कमिटीज आर देयर, इसकी रिकमेंडेशन जरूर पढ़िएगा फॉर द फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द प्रीलिम्स।
एक स्टेप्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके, फॉर एग्जांपल इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द सीजेआई और ऑफ द एनी ऑफ द जजेस इनटू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके व्यू पॉइंट के लिए। तो इन सभी टॉपिक्स को ओके एक लिस्ट बना के, और दोज हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर द प्रीलिम्स, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 2 तारीख को 3 तारीख को आप बुक निकाल के बैठ गए, दिस इज अ रॉन्ग क्राइटेरिया। कोई ऐसा 10-15 पेज का रजिस्टर बना लीजिए जिसके अंदर बुलेट फॉर्म में आपने कुछ लिखा हो, ओके बुलेट फॉर्म के अंदर, ताकि आप उसको कम से कम 2-3 घंटे में रिवाइज कर सके। और उसके अंदर प्रीलिम्स के व्यू पॉइंट से ज्यादा मटेरियल होना चाहिए। मेंस रिटन इज नॉट अ बिग डील, ऑलवेज रिमेंबर, मेंस रिटन तो इट इज जस्ट लाइक द बोर्ड एग्जामिनेशन, वो हो जाएगा, बट द प्रॉब्लम एरिया इज द प्रीलिम्स। प्रीलिम्स हमेशा एक प्रॉब्लम एरिया रहता है, तो उसको अच्छे तरीके से कैच कीजिएगा। सो दीज आर द टॉपिक्स। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स है जो मैं आपको बता देता हूं, लाइक प्रीएम्बल, ओके जो प्रीएम्बल के टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, जो मैंने पढ़ाए हैं, ओके जो जिन स्टूडेंट्स ने में से ऑलरेडी प्रीएम्बल को पूरा पढ़ा हुआ है, तो प्रीएम्बल के टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है हमें। प्रीएम्बल को आप उस तरीके से मत पढ़िए, देखिए कंसेप्ट तो हमें समझ आ गया। फॉर एग्जांपल प्रीएम्बल में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिज्म, देन आफ्टर दैट लिबर्टी, इक्वालिटी, सोवरेनिटी। इन टर्म्स को गूगल पर भी थोड़ा डेप्थ में पढ़िए, नॉट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बुक। जो कंसेप्ट आपने मुझसे पढ़े प्रीएम्बल में, फॉर एग्जांपल मैंने आपको सेक्युलरिज्म पढ़ाया, डेमोक्रेटिक पढ़ाया, सोवरेनिटी पढ़ाया, जस्टिस पढ़ाया, देन आफ्टर दैट लिबर्टी पढ़ाया था आपको मैंने, इक्वालिटी पढ़ाया था, सोवरेनिटी पढ़ाया है, और सोशलिज्म। ओके ये कुछ 8 to 9 कंसेप्ट्स हैं। इनके ऊपर सिंस 2016 एक नया ट्रेंड बना है प्रीएम्बल को टारगेट करने का। तो प्रीएम्बल में जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, तो उसे टारगेट करके ओके इसको जितना मैंने पढ़ाया वो तो पढ़िए ही, बट उसे गूगल भी करा कीजिए। और जिन स्टूडेंट्स का आई सजेस्ट, जिन स्टूडेंट्स का बीए या फिर एमए प्रोग्राम है, प्लीज लिसन इट केयरफुली। अगर कोई स्टूडेंट है जिनका बीए या फिर एमए का प्रोग्राम है, दोज आर स्टडीइंग अबाउट द बीए प्रोग्राम, क्योंकि बीए का बेस्ट स्टूडेंट होता है फॉर द सिविल सर्विसेज। ऐसा नहीं है कि बाकी स्ट्रीम्स के भी आते हैं, बट बीए का एक प्रिस्क्राइब स्टूडेंट आप मान सकते हैं। तो जो बीए एमए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास ऑलरेडी कुछ बुक्स होंगी, यूनिवर्सिटी या फिर इग्नू से कहीं से भी आप कर रहे हैं, तो आपके पास ऑलरेडी कुछ बुक्स होंगी जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स दिए होंगे प्रीएम्बल के डिटेल में, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो प्लीज उसे भी रेफर कर लीजिएगा। आई रिक्वेस्ट यू, जो मैंने पढ़ाया है वो तो है ही है, बट उसे भी डिटेल में पढ़ लीजिएगा, वो आपको काफी 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 ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा इन कैलकुलेटिंग द वेटेज। ओके उससे आपके थॉट्स और क्लियर हो जाएंगे और प्रीएम्बल का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि प्रीएम्बल के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है वो, प्रीएम्बल के ऊपर हो गया, स्पीकर के ऊपर हो गया, बड़े नॉर्मल आ रहे हैं। प्रीएम्बल तो याद रखिएगा। अब ये आई कैन नॉट टेक द गारंटी कि इस साल वो पूछेगा या नहीं पूछेगा, बट वो प्रीएम्बल में पूछ रहा है। इसके अलावा और कौन सा टॉपिक बचा हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये जितनी भी हैं डिटेल में, पावर, फंक्शन, ड्यूटीज, पूरा डिटेल में। और जितना मैंने लिखवाया है उससे भी अगर आपको ज्यादा मिल सके तो उससे भी पढ़िएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, कितना टेन्योर होता है इलेक्शन कमीशन के चेयरपर्सन का, देन आफ्टर दैट यूपीएससी के कितने मेंबर होते हैं, देन व्हाट इज द वर्किंग ऑफ आजकल सीबीआई का बड़ा इशू चल रहा है ना, तो सीबीआई के ऊपर वो घुमा फिरा के पूछ सकते हैं सीबीआई की वर्किंग कैसी है, सीबीआई के अंदर कितने आप कह सकते हैं कि कितना कंसेंट लेटर लिया जाता है। लाइक लेट मी गिव यू एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक, व्हाट इज कंसेंट लेटर, कि अगर सीबीआई को, अभी हम देख रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई को इंटेरोगेट नहीं करने दिया जा रहा था, तो उसके अंदर होता क्या है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने करवाया है, ये भी याद रखिएगा। अदरवाइज हर स्टेट को एक कंसेंट लेटर प्रोड्यूस करना पड़ता है, जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, जिसके अंदर वो अप्रूवल देते हैं कि हाँ सीबीआई हमारे यहाँ पे आके केस इन्वेस्टिगेट कर सकती है। अगर मान लीजिए कोई स्टेट है वो कहती है कि भाई हम नहीं देंगे, तो सीबीआई ऐसे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में वो सीबीआई का जो हमने केस देखा तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीबीआई के फंक्शंस, इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा प्लीज, कि व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द सीबीआई, ओके, एंड व्हाट आर द फंक्शंस, या फिर उसके बाद जितना भी डिटेल पढ़ सकते हैं। ओके जैसे अभी मैं आपको एक और इसके ऊपर इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो। सीबीआई किसके अंडर आती है, कहते हैं एमएचए के अंडर। ओके तो वो एमएचए से ट्रांसफर होकर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंडर चली गई है। ये भी याद रखिए, छोटी छोटी चीजें हैं, ये न्यूज़पेपर में भी नहीं आती, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ओके तो सीबीआई जो है वो किससे अंडर से कहां पे चली गई है,
पहले वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एमएचए के अंडर थी, अब वो किसके अंडर है? दैट इज इट हैज कम अंडर द दिस मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। ऐसा क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है कि सीबीआई किसके अंडर आती है, क्या वर्किंग है उसका, कोई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट, फॉर एग्जाम्पल फार्मर बिल, ये तो बिल्कुल अभी आया है, शायद से इसके ऊपर ना पूछे। कोई इंपॉर्टेंट बिल आया हो, कोरोना से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, ओके, लाइक द एनएसए एक्ट 1980, एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट, इनके ऊपर आसानी से 1897 का है ये, तो इनके ऊपर नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, सो ऑल दीज आर द यू कैन कंसिडर अबाउट द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स व्हिच कैन बी इजीली इंक्लूडेड इनटू द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन इनटू द प्रीलिम्स फॉर द ईयर 2020, और इसी के आसपास ही रहेंगे अगर हम क्वेश्चंस को कैलकुलेट भी करें, इससे ज्यादा बाहर नहीं जाएंगे। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव गिवन टू यू रिगार्डिंग दिस। थोड़ा बहुत मैं आपको और बता देता हूं, वी आर हैविंग फ्यू मिनट्स। द अदर थिंग दैट इज रिलेटेड टू अस इज दैट व्हिच मटेरियल टू बी रेफर्ड, ओके, फॉर इंडियन पॉलिटी। ओके, देखिए इंडियन पॉलिटी ना, पहली बात तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समझना पड़ता है, ये जरूर बात को आप समझ जाइए अच्छे तरीके से कि इंडियन पॉलिटी को समझना पड़ता है, उसके बिना वो बात नहीं बनेगी। कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई टीचर चाहिए। जैसे हिस्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपको मेडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ाया, फिर भी आप हाथ पांव मार के हिस्ट्री को समझ लेंगे, ओके, कि हिस्ट्री आपको समझ आ जाएगी मेडिवल में ये टॉपिक से ये टॉपिक से, तो ऑल दिस टॉपिक यू कैन अंडरस्टैंड इनटू द डिटेल। बट जब हम पॉलिटी की बात करते हैं तो वो ऐसे नहीं हो सकता। ओके, पॉलिटी के लिए गाइडेंस चाहिए, यू नीड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटी, ओके, उसकी पूरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तब जाके वो समझ आएगा। अब उसके दो सोर्सेज हैं, वन इज द क्लास नोट्स, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही है। उसके अलावा जो सेकेंडरी चीज है, द सेकेंडरी थिंग इज द फर्स्ट इज द क्लास नोट, सेकेंडरी इज द एम लक्ष्मीकांत। ये आप सबको पता ही होगा, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। एम लक्ष्मीकांत एक इंपॉर्टेंट बुक है पॉलिटी की, ओके, व्हेन वी कंसिडर अबाउट, और वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है, ये भी याद रखिएगा। M. Lakshmikant is only and only for the prelims. It is not being made for the mains written. Okay? कि mains written में उसका कोई भी आप नहीं कह सकते कि mains written में बहुत बड़ा रोल है M. Lakshmikant का, बस उसका prelims तक ही आप कह सकते हैं, क्योंकि एक तो कुछ ज्यादा डिटेल है, काफी सारे टॉपिक्स तो उसमें पढ़ने के ही नहीं है, ये भी याद रखिएगा। ओके, देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स व्हिच आर नॉट टू बी स्टडीड फ्रॉम द एम लक्ष्मीकांत। और दूसरी बात, वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, मेंस रिटन के लिए आपको घूम फिर के मेरे नोट्स पर ही आना होगा। दिस इज टू बी रिमेंबर्ड बाय यू दैट व्हिच आर द टॉपिक्स दैट आर बीइंग इंक्लूडेड इनटू दिस, दैट लाइक जैसे टॉपिक्स तो आपको सभी मिल ही जाएंगे, ओके, बट उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। You agree with this or not? तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें नॉर्मल तो नोट्स दैट आर द क्लास नोट्स आर सफिशिएंट, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि स्टैटिक का कंटेम्प्रेरी से क्या रिलेशन है, ठीक है कि नहीं, कि स्टैटिक का करंट अफेयर से क्या रिलेशन है। और जब हम उसकी बात करते हैं अबाउट द एम लक्ष्मीकांत, सिर्फ रेफरेंस के लिए, ज्यादा लॉन्ग टर्म वो आपका साथ नहीं दे पाएगी, आपको दोबारा नोट्स के लिए और टीचर गाइडेंस के लिए ही आना पड़ेगा इसके लिए। ओके, सो अप टू दिस विल बी डूइंग टुडे, आज हम यहीं तक करेंगे इनटू द इंडियन पॉलिटी, देन someday if we will be having the proper kind of coordination, we'll start with this. Thank you.